Okay, चलो तो शुरू कर. So, hello, how are you? I'm good, sir. Tell me, Yes, what's gripping you? पॉडकास्ट लेना ऐसा लग रहा है पॉडकास्ट दे रहे इंटिमिडेट हो गया Sir has hijacked the podcast. यस सर सर आपके सॉक्स बहुत अलग है मतलब कुछ ये Yeah, these are compression stockings. I have a problem with my legs. ओके So the blood tends to flow down. So you have to have a compression stocking ओके to keep hold. That's why I was looking for a chair to keep my feet. अच्छा सर आप कंफर्टेबल है ऐसे कि It's okay. Come on, continue. Let's see. सर तो मतलब सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आपने 1960s में आपने इंजीनियरिंग किया था वो भी आईआईटी से आपके टाइम पे क्या जेई होता था कि कुछ अलग होता था, यही होता था. तो आपने कोचिंग वगैरह लगाई थी कुछ नहीं कोचिंग नहीं होती. कोचिंग इन ए वे हुई थी हाँ क्योंकि हमने उस समय क्या था that after 11th you could enter into IIT ओके because it was a 5-year program. ओके Okay. Unlike now, it's a 4-year program. Now it's a 4-year program. ओके My exposure to humanities and social sciences was immense. ओके Because in IIT Kanpur, every semester there would be one course in humanities and social sciences. Mm. So my exposure to management, to economics, to sociology, to psychology, to symbolic logic, which I think is my very favorite subject, which I feel that all designers must go through because often they get caught into fallacies. ओके Fallacies in logical thinking. When I was first semester teaching course to the first batch, then I had exposed them to fallacies in logical thinking. ये कब था Yeah. अच्छा डीटीयू वाले DTU, first. And the courses were designed by me. So as far as the course curriculum is concerned, I would say that your department is far ahead of the world. ओके ऑफ द वर्ल्ड Of the world. ओके So you have, look at the titles. Now, if those titles are backed up by good library and good labs, I think this department could be one of the best design departments. And that is where I think. करिकुलम इज वेरी डाइवर्स अभी मुझे पता चला उसका रीजन क्या है सर तो मतलब आपका तो आईवी लीग जैसा ही एजुकेशन हो गया और आईआईटी कानपुर में भी There's no doubt about it. I've got the best education in engineering. I've got the best education in design. ओके Okay. Because I was fortunate enough to go to the Royal College of Art and study there. So how was your experience in Royal College of Art and Design? And it was mind-opening because I had gone from an engineering background, though I had the aptitude, etc. But going to that institute and the diverse departments that they had, from painting to sculpture to ceramics to textile to environment design, and how they actually looked at problems, how they interpreted the problem was very different. If it is a textile department, if I look at textile departments in India, they are making garments. Yes, sir. Totally. But there they are looking at this material called textile and what can you do with it. And they'll do all types of things with it. So the way they interpret design is different. That's the only difference. हाँ सर आपका ट्रांजिशन कैसे आया बीटेक से डिजाइन में हाउ डू It's all God's grace. I think it had to go into this so that maybe I had to help you all. Definitely. It happens like this. I tell you frankly, it happens like this. Over a period of time, I realized that most of the education in engineering is to do with problem solution, solving problems. It is not to do with problem formulation. And one of the strength of design is problem formulation. How you formulate the problem. आपने पूरा ट्रांजिशन देखा है दिल्ली का हाँ मैंने ट्रांजिशन देखा है और समझो जब मैं एमटेक में था तब इसका अमूल का पहला
मिल्क बूथ बना था। ओके समझ गया। तो अभी मदर डेयरी का बना है। पहला मिल्क बूथ बना था। Okay. So it was such an excitement for us also. तो साइकिल पर बैठ करके हम लोग जाते थे, ठंडा ठंडा दूध पी के चले जाते थे, straight from the machine. सर आपने बताया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो उन्होंने आपको रिकमेंड किया कि आप VLT, तो आपको कौन सा प्रोजेक्ट था, आपको याद है क्या? इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। इसमें क्या हम कर रहे थे कि वी वर ट्राइंग टू सिमुलेट the orbits. When you launch a satellite, for example, the satellite can go into orbit. Yes, sir. And how does it go into orbit? And the other thing is that sometimes you can use this gravitational field to kickstart, to give speed to it. Slingshot, basically. Slingshot. Yes, sir. And then there can be a soft landing, there can be a hard landing. Yes. So we were trying to simulate these concepts. Okay. A very simple device, a very, very simple device. So it was essentially a magnet. Okay. So we're using a magnet. And through the magnet, we are creating a inverse square field. तो क्या होता है M1, M2 वो R square होता है ना, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वही नेचर होता है। So अगर हम एक कोई बॉल लें और बॉल को हम स्पीड दे करके उस फील्ड में ले जाएंगे, so then it will go into those orbits. And you could simulate कि भाई ये क्रैश लैंड कर रहा है, ये सॉफ्ट लैंड कर रहा है, ये स्लिंग शॉट हो गया। तो उस समय तो ज्यादा वो कुछ था नहीं, कैमरे रहते नहीं थे, तो हमने कार्बन पेपर रख करके उसके ऊपर वो बॉल चलती थी, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री पूरी बन जाती थी, मैप बन जाता था। And it was very interesting. Ergonomically, it was very nicely designed. क्योंकि बॉल जो है जब गिरती थी तो वो एक और दूसरे नीचे ड्रम में आ जाती थी, तो और वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाती थी बॉल, तो आप उसको बहुत कन्वीनियंटली उसको उठा करके और appropriate speed देते थे। स्टील बॉल। Steel ball. So one could do experiments without interruption. रॉकेट की वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए, किस चीज की? रॉकेट की वेलोसिटी अगर तो वे रॉकेट की वेलोसिटी will determine or distance from the heavenly body will decide whether it is going to an orbit or not going to orbit and what type of orbit. तो orbit circular भी हो सकती है, elliptical भी हो सकती है. So I was able to illustrate all these things. Okay. Without the softwares, you were doing it practically. तब तो होगा भी नहीं कुछ सॉफ्टवेयर, कोई खास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं, हमने प्रोग्रामिंग वगैरह तो की थी, मगर ऐसा कुछ नहीं था। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर नहीं था, मतलब स्क्रीन्स जो थी वो अल्फा न्यूमेरिक होती थी। ओके, वो ग्राफिकल नहीं होती थी। MS DOS टाइप का। वो ग्राफिकल नहीं होती थी। MS DOS जब आया था तो ग्राफिकल स्क्रीन्स हो चुकी थी, मगर उससे पहले जो था, जो भी डेटा आता था वो नंबर फॉर्म्स में आता था। तो आपने सर वो पूरा ट्रांजिशन देखा, अभी हम हाथ में फोन यूज कर रहे हैं, वो पूरा एकदम पावरफुल है, और उस टाइम पे बड़े कंप्यूटर। सर इंजीनियरिंग जॉब किया था आपने सिविल इंजीनियर के बाद? नहीं, मैं तो सीधे एमटेक के बाद ज्वाइन कर लिया था ना IIT दिल्ली। सर मैं आपके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ एकदम। मैंने भी बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग, एमटेक कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ते रहिए। सिविल का एक फायदा है that it gives you a social orientation to engineering, which is what you don't get if you were doing, let's say, electrical engineering. क्योंकि वहां पर आप लैब में हो, बस सर्किट बनाते रहते हो, उसका क्या इम्पैक्ट है लोगों पर वो नहीं आता है। मगर सिविल इंजीनियरिंग के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट सोशल लेवल पर होते हैं, तो हम उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाते हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है कि भाई लोगों पर क्या इम्पैक्ट है। सर जैसे ये हमारा होता था फ्लूइड मैकेनिक्स से लेके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। सर अभी मुझे वो पढ़ने के बाद लगता है कि सर पानी जो हम शावर में वेस्ट करते हैं कितना कठिन है उसको नदी से लेके वहां तक ले जाना, हाउ मच एनर्जी इट गोस, और हम वेस्ट कर देते हैं। और अगर आप सोचिए कि नेचर में बादल जो है कितना पानी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यस डेफिनेटली सर। और ये कैसे फ्री हो रहा है,
Yes, sir. अगर इसको बैठ के तुम कंप्यूट करो Hmm. कि इतना पानी जितना लेटेस्ट से रेंज में होता है एक इंडिया के पूरे टेरेन में पानी बरस रहा है, उतना पानी हमको ट्रांसपोर्ट करना है थ्रू अ पाइपलाइन। Hmm. कितना बड़े पंप्स चाहिए, Yes, sir. बहुत Totally. बहुत सर, ये सब बहुत। आपको फ्री मिल रहा है। Yes, sir. ये नेचर की खासियत है। यस सर। पूरा तो उसमें study इसीलिए मैं रिटायरमेंट के बाद आई हैव बीन फोकसिंग मोर ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड my objective has been to understand that how is it that the nature is so creative Yeah. and yet it is sustainable. So as far as creativity is concerned, nature में immense creativity और minimum resources से सब काम करता है। किस तरह से वो resources को harness करता है is amazing. हर चीज अबंडेंस में है, पर हर चीज फिक्स रेशियो में। अबंडेंस भी है और अबंडेंस होने के बाद भी वो बहुत कॉशियसली यूज करता है। Yes, sir. और अबंडेंस जो है वो इन टर्म्स ऑफ लाइफ क्रिएट करता लाइफ है, क्रिएट है। सो दैट मोर लाइफ कैन बी देयर विद लेस रिसोर्सेस। Yes, sir. सो उसका एम्फेसिस जो है इज नॉट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इट्स ऑन क्रिएशन ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ। Yes, sir. सही ना, में हमारी जो मेंटालिटी थी इंडिया की जुगाड़ वाली या कंजूसी वाली, इन अ वे दैट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, डोंट यू थिंक दैट? हाँ, वही है वो हमारा माइंडसेट। हम स्कूल में थे ना, तो हमने एक क्या ऐसे लिखा। हाँ। तो उसमें मैंने एक लाइन जो थी किसी नॉवेलिस्ट की किताब में से बोरो कर ली थी। हाँ। और उसमें लाइन में ये था कि भाई वो एक धागा पड़ा हुआ है सड़क पर, वो जो बुढ़ा आदमी जो है वो उस धागे को उसने उठाया। हाँ। और मैंने उसका इंटरप्रिटेशन ये दिया कि वो बड़ा कंजूस किस्म का आदमी था। हाँ। तो हमारे टीचर ने ये पॉइंट आउट किया कि नहीं, वो कंजूस नहीं है, वो वेस्ट नहीं करना चाहता है, वो उसमें वैल्यू देख रहा है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो ना भगवान ने डाल दी थी। हाँ। और हम बुरा बोलते हैं इसको, कंजूसी है या कहीं ना कहीं मतलब सस्टेनेबिलिटी को एक पर्सपेक्टिव भी इम्पैक्ट डाल रहा है कि अगर हम लोग ये पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं कि वी आर नॉट गोना यूज इट ट्वाइस, तो फिर वो सस्टेनेबिलिटी के लिए डाउन साइड है। हाँ, वो डाउन साइड हो जाती है। हम वेस्ट को, किसी भी चीज को एज वेस्ट देखते हैं ना, तो हम उससे डिटैच हो जाते हैं। यस, टोटली। यस। और वो दैट इज द एंड of our creative thinking. That is the end of non-sustainable existence. There is nothing called waste. So डिजाइन प्रोसेस में फिर पर्सपेक्टिव का कितना इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से? पर्सपेक्टिव का ही इम्पोर्टेंस है, नॉट ओनली डिजाइन में, ये सारी थिंकिंग प्रोसेस में पर्सपेक्टिव का इम्पोर्टेंस है। जो आपका पर्सपेक्टिव होता है वो आपके डिटरमिन करता है कि आपकी वैल्यू स्ट्रक्चर क्या है। और वो जो पर्सपेक्टिव है और वैल्यू स्ट्रक्चर है वो डिटरमिन करता है द कोर्स ऑफ योर थिंकिंग। जब आप एक डिजाइन ब्रीफ बनाते हो तो आपने क्या किया है, आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है। अब वो डिजाइन ब्रीफ बनाया है तुमने, तो वो इट विल चैनलाइज द कोर्स ऑफ योर थिंकिंग। एक व्यक्ति है वो बहुत जेनरस है, उसकी थिंकिंग का एक डायरेक्शन रहेगा। दूसरा आदमी जो है वो बड़ा खुंदकी है, तो उसकी जो खुंदक है वो डिटरमिन कर रही है उसकी थिंकिंग को। बायसेस, ये बायसेस हैं, ये वैल्यूज हैं। जो खुंदकी है उसकी वैल्यूज अलग हैं, जो जेनरस है उसकी वैल्यूज अलग है। तो ये वैल्यूज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे दिमाग में क्या वैल्यूज है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है। वो अगर हम सही कर देते हैं तो तुम्हारी थिंकिंग ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमें डिफरेंट टाइप का डिजाइनर बनाती है। मतलब आई विल थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन इन डिफरेंट वे देन टीचर क्या करता है आपका यहाँ पर, तो पर्सपेक्टिव भी तो चेंज करता yes, है। डेफिनेटली हम पर्सपेक्टिव चेंज करें, बाकी तो तुम ही करते हो। yes,
प्रॉब्लम वैलिडेशन वाली जो चीज है वो रविंद्र सर ने चेंज किया था हमारा। जैसे आपका हम लोग पहले एक सिंपल प्रॉब्लम को लेते थे कि प्रॉब्लम है, रविंद्र सर हर बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम क्यों है, मतलब वैलिडेशन क्या है, व्हाई डू यू थिंक इट इज अ प्रॉब्लम फाइंडिंग, देन वैलिडेटिंग, देन फाइंडिंग सॉल्यूशन वैलिडेटिंग, प्रोडक्ट वैलिडेशन, हर एक पॉइंट पे वैलिडेशन। जो आपका डबल डायमंड है ना, यस सर, कि फर्स्ट डायमंड में क्या है, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। यस सर, तो ये वैलिडेशन ऑफ द प्रॉब्लम। यस सर, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। यस सर। सेकंड डायमंड में क्या हो रहा है, हाउ टू डू इट राइट। राइट, हाँ ये आपने बोला, ठीक है ना। हाँ तो ये दो चीज याद रखोगे तो बहुत कुछ याद रहेगा। ओके सर। सर आपने बोल रहे थे कि जैसे वो आदमी ने थ्रेड उठाया, वो इन अ वे उसको कंजर्व करने के लिए देख रहा है। हाँ वो देख रहा है, मगर हम कैसे देख रहे थे, हाँ। हम ये देख रहे थे कि वो कंजूस आदमी है। अब उसमें कंजूसी कहाँ आ गई, मगर बचपन है हमारा, वो थिंकिंग नहीं है, समझ नहीं है। पर एज अ डिजाइनर्स हम तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना फॉर कंज्यूमरिज्म, हम तो वो प्रमोट ही कर रहे हैं नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन अ वे। नहीं देखो, डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह से, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव अगर ये है to care for people, then you are not producing for consumerism. Okay. If your objective is to make money, then you will go into consumerism. Okay. Intent. वही पर्सपेक्टिव। अगर कोई डॉक्टर है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है to care for the person, to cure that person, then he will cure that person. Yes. If his objective is to earn money, then I don't think he's going to cure the person. Yeah. So, but in that process, the patient is suffering. This is what is happening. The user is suffering. The society is suffering because of unsustainable practices. So consumerism is not the right way to go. So, तो जो हमारा इंडस्ट्रियल डिजाइन हुआ है वो फिर इन अ वे रॉन्ग होएगा, क्योंकि पहले तो आर्टिजन्स थे, तो वो लिमिटेड। हाँ, somewhere we ourselves were responsible. Yes. We contributed to consumerism. And when I showed you all that video, light bulb conspiracy, yes. तो उसमें तो उन डिजाइनर्स की बात कर रहा है, yes. स्पेसिफिक नाम ले रहा है Yes, sir. कि ये लोग जो थे, ये यूनिवर्सिटीज में जाते थे और स्टूडेंट्स को ये सिखाते थे हाउ टू मेक दिस प्रोडक्ट फेल. So we had a role to play. Yes, sir. In this consumerism, an active role to play. तो सर ये शिफ्ट आपने पूरा देखा है कि कैसे हम लोग मतलब मैन्युफैक्चर करते थे कंज्यूमर की तरह, और उसके बाद अभी फिलहाल हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ। और सस्टेनेबिलिटी तो चलेगा, बहुत तेजी से चलेगा फ्यूचर। और सस्टेनेबिलिटी जो आप पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे ना, sustainability is providing you with a new perspective. And because now my perspective has changed, every product will be redesigned. Yes. So there is a tremendous scope for innovation and IPR generation. Yes. Because now you have a new perspective called sustainability. Yes, sir. So there is an opportunity for a lot of IPR to happen. और सर फिर रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट का उधर का कैसा एनवायरनमेंट था? बहुत बढ़िया, शानदार। और फिर उसके चारों तरफ अगर तुम देखोगे तो म्यूजियम्स, बड़े बड़े म्यूजियम, साइंस म्यूजियम, नेशनल ज्योग्राफिकल म्यूजियम, एक और 3 म्यूजियम थे। वहाँ इंडियंस थे सर, स्टूडेंट्स में इंडियंस थे, और आपके अलावा इंडियंस में हमारे बैच में थे। प्रोडक्ट डिजाइन में मैं था, कीर्ति त्रिवेदी, वो भी गए थे उसी बैच में। और फिर साल भर के बाद एक मेरे और कलीग मुंशी, तो मुंशी एंड त्रिवेदी हैव बीन इन IIT Bombay, industrial design, and I was in IIT Delhi. So that's how it was. सर आपने 12th नहीं की थी, कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है एडमिशन में? 10th और 12th के बाद 12th की मार्कशीट नहीं है आपके पास? सर तो IIT अपने पास रखना चाहता था, मुझे लगता है कि 12th नहीं करना was a problem. सर RCA में मतलब उस टाइम पे जैसे अभी सस्टेनेबिलिटी इज मतलब हर जगह पे पुश हो रहा है, तब क्या पुश होता था? नहीं,
sustainability had also become, मतलब anti-consumerism was becoming an important focus. Then 1960s में भी 1970s 70s में yeah, हाँ early 70s में दो important किताबें थी विक्टर पेपरनेक की थी डिजाइन फॉर द रियल वर्ल्ड. okay So the real world was not the world of mall Okay. or superstore. Okay. So the real problems Hmm. that were there in the society. So ये poverty की थी, environment की थी. Hmm. So thinking had started. Hmm. Definitely it had started. okay. तो आपने कंसल्टेंसीज दिए कंपनीज को या किसी प्रोजेक्ट्स के लिए हाँ बहुत किए. कोई ऐसे फेमस ब्रांड जो आप बताना चाहो नहीं कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं. सर ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसके लिए आप बहुत प्राउड हैं? मेरा आई एम प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट्स Okay. एंड वो मैंने अपना एम्फोसिस इट वाज अ चॉइस that rather than designing products I was more concerned with designing people Okay. because I felt that if I designed good people then they will make. in turn will make. So that I felt was the right direction. Consultancy तो अभी भी कर लेता हूँ. अच्छा एर्गोनॉमिक्स में तो दिल्ली मेट्रो का ओसीसी क्या होता है? ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर. ओके Okay. ओके हाँ सो दिल्ली मेट्रो का ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर, बेंगलोर मेट्रो का ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर, हैदराबाद का कंट्रोल सेंटर और अभी एक और 3 किया है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का. Okay. तो ये सब कुछ काम करते ही रहे. सर अभी आपने स्टूडेंट्स की बात की, कोई आपको मतलब ऐसा स्टूडेंट जो जिसके लिए आप बहुत प्राउड हैं या फिर बहुत हैं या फिर उनका नोटेबल काम जो- बहुत नोटेबल काम है, बहुत नोटेबल. सर एक एग्जांपल They turned companies around. शिवा कुमार है ओके रॉयल मारुति एनफील्ड में. रॉयल एनफील्ड पहले था मारुति सुजुकी में, हाँ. रॉयल एनफील्ड में है. हु डिजाइन ए स्टार हाँ शिवा उसने पूरा मतलब रॉयल एनफील्ड के जितने मॉडल्स हैं उनको बिल्कुल नया लुक Yes, उस कंपनी को टर्न अराउंड. हम्म, सत्यशीलन है हम्म, अशोक लीलैंड में. He's the vice president there. okay. He's done tremendous job. कमल पंडित है पहले वो एलजी में था. बैंक डिजाइन बेंगलोर में अच्छी कंसल्टेंसी है. अमितोष सिंह है इस समय पहले सैमसंग इनोवेशन में थे. वो सैमसंग इनोवेशन में थे. इस समय बॉस्टन कंसल्टेंसी ओके बीसीजी में हाँ BCG में है. बहुत है न्यूमरेबल. फैंटास्टिक. सर कोई सजेशन जो आप हम स्टूडेंट्स को देना चाहें? यहाँ पर हमें कमी दिखाई पड़ रही है खासतौर से जैसे मतलब प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो तो you are working most of the time like an engineer. You are not relating it with the user. तो अक्सर मैं कहता हूँ कि भाई इसमें हाथ लाओ, इसमें व्यक्ति लाओ. फिर दूसरा क्या है कि थोड़ा डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ये इम्पोर्टेंट है. चीज को बनाओ, थोड़ा सा बनाओ, रफ बनाओ. जैसे डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में कहते हैं ना कि भाई फेल अर्ली. तो कुछ बनाओ चाहे फेल कर जाओ, डजंट मैटर, रफ बनाओ. वो हम नहीं कर रहे हैं. तुम लोग जो जितना काम कर रहे हो सब वो कागज पर कर रहे हो, कंप्यूटर पर कर रहे हो. वो कमी है. आप ओशो वगैरह के भी फैन थे क्या, दाढ़ी वगैरह के? हाँ ओशो के भी थे बट रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में तो सब लोग ऐसे ही रहते थे. सर मतलब काम इतना होता है कि यू डोंट गेट टाइम टू शेव या फिर इट इज अ मतलब डिजाइनर नहीं, डिजाइनर यार एफिशिएंसी. हाँ नहीं वो देखो क्या है, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट था, उसके बगल में जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट इंपीरियल कॉलेज था. हाँ तो इंपीरियल कॉलेज जो है वो हाई लेवल साइंस एंड इंजीनियरिंग. वहाँ के बच्चे अलग ढंग से ड्रेसअप करते थे. रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के बच्चे अलग ढंग से ड्रेसअप करते थे. तो एक माइंडसेट की बात है और कुछ
Okay. And they are more concerned with constraints. We are less concerned. We want to break constraints. Yes. तो इसलिए ब्रेक करने के लिए कोई अपना बाल रंग लेता है, कोई दिख रहा है सर, DTU में दिख रहा है। काफी ज्यादा दिख रहा है सर। कर होएगा इनएविटेबल। सर पर एज एन इंजीनियर हम लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ करना चाहिए। सर मे बी वो ऐसा थॉट वो है ही दिमाग में ही गड़ गया है कि यू हैव टू और बी मॉडेस्ट इन अ वे, मॉडेस्ट रहना चाहिए, प्रॉपर्ली ड्रेस रहना चाहिए, ऐसा। हाँ सर्टेन लिमिट तक के नहीं, वो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी प्रॉपर्ली ड्रेस हो रहा है, पर वो उसका पर्सपेक्टिव है। वो अगर उस तरह की ज्वेलरी पहन रहा है या उस तरह की दाढ़ी रख रहा है या कुछ कर, वो उसका पर्सपेक्टिव है। ही हैज टू एक्सप्लोर, वो उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग है। सर आपने मतलब विमेन इन एजुकेशन जो है 1960s से लेके अभी तक के कैसा चेंज हुआ? हाँ, अच्छा चेंज हुआ है, जैसे बहुत अच्छा चेंज हुआ है। और मोर एंड वुमेन आर कमिंग इनटू एजुकेशन, व्हिच इज वेरी गुड, व्हिच इज एसेंशियल। आपके बैच में थे कुछ लड़कियां? पूरे इंस्टीट्यूट में 3-4 लड़कियां होती थी। सर रॉयल स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी नहीं, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में तो ऐसा था, उसमें भी आप देखोगे इंडस्ट्रियल डिजाइन में एक लड़की थी और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में एक लड़का था। सर रिग्रेट तो नहीं हुआ ना इंडस्ट्री लेके? टेक्सटाइल लेना चाहिए था। तो बहुत क्या बड़ा मैनेजमेंट की तरफ से कोई गलती हो गई थी? तो ये हेलो, हाउ यू आर? So we are shooting a podcast. Would you like to join? No, no, please go ahead. Oh, You have your podcast first. yeah. सर पर अभी भी ऐसा ही है, में 1-2 लड़की रहती हैं। मैंने तो सर डिप्लोमा किया मैकेनिकल से, बीटेक भी किया, बट दोनों ही टाइम पे एक भी लड़की नहीं थी हमारे बैच में। सारे के सारे लड़के थे 65 पूरे बैच में। तो मैकेनिकल में तभी तो अभी तक वैसा नहीं आ पाया कि लड़कियां और लड़के। सर तेरे से ज्यादा लगी थे 1960s में, 3 तो लड़कियां थी कम से कम पूरे इंस्टीट्यूट में। ऐसे इंस्टीट्यूट में तो अभी हमारे पास तो ज्यादा ही है। तो अपने इंस्टीट्यूट में भी बहुत थी, अपन ने पढ़ लिया। मेरे कॉलेज एक अनार 100 बीमार वाला काम। और इसी की वजह से सब इंस्टीट्यूट्स में कल्चरल फेस्टिवल्स का कॉन्सेप्ट आया, ताकि लड़कियां आए। जैसे कि अगर अपने कॉलेज में नहीं है तो एक अपॉर्चुनिटी हो ना इंटरेक्शन के लिए। Which benefited you? I was handsome enough. So, I didn't have to run around. कौन से आपके ऐसे फ्रेंड्स है जो आपके परमानेंट फ्रेंड सर्कल में सर थे? अभी भी है। तो एक हमारे फ्रेंड दिनेश मोहन, so we were in school together, and then he joined IIT Bombay, then he came to IIT Delhi, Okay. and then he was teaching in the Indus program, Okay. economics पढ़ाते रहे हैं, Oh, तो उनके साथ एक लिंक रहती रही। okay. सर रविंद्र सर उनके स्टूडेंट थे क्या? नहीं, उनके नहीं थे। Okay. He is a replacement for that. He is also teaching economics. हाँ, अभी ऐसा लगे बहुत हो गया, टीचिंग पॉलिटिक्स में चले जाओ, मिनिस्टर वगैरह बन जाओ। आई थिंक एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था कि तुम मिनिस्टर बन सकते हो, Okay. और अगर मैं आप सरकार में चला गया होता तो मिनिस्टर बन गया होता। सर आप आ जाओ, संपूर्ण बहुमत दिलाएंगे आपको DTU का स्टूडेंट को बस। सर के पास ऑलरेडी इतने स्टूडेंट्स का बैकिंग है ना। DTU is just a small thing. मैं बैचलर हूँ। Oh, great. सलमान भाई के बाद में। What is design for you? डिजाइन सर, मैं तो अगर बार पैरों बार पर रखना कहता चाहे तो रख सकते हूँ, हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार डिफाइन भी करता हूँ इस तरह से कि डिजाइन इज बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। Okay. दैट इज व्हाई व्हेन यू आर मेकिंग दिस डिजाइन आई कीप सेइंग कि भाई बोतल बना रहे हो तो हाथ के साथ बनाओ, Okay. because that's relationship with the hand is there. Okay.
ओके, ऊपर का ढक्कन खोलना तो खोल रहे हो ना, तो नाउ द रिलेशनशिप हैज टू बी देयर विद योर फिंगर्स. ओके. Okay, if this bottle is to be placed on the, now you have to develop a relationship. Yes. So all these relationships you have to continuously explore. Okay. A happy bachelor. Yes, sir. That's welcome. You are handsome enough to be a bachelor. Yes. ये न्यू जनरेशन में ही क्रेज है सर, स्टेडलर का पेन होना चाहिए या हाँ, स्नाइडर का, Schneider का। पॉकेट में लगाएंगे तो लगता है डिजाइनर है. मोदी जी का भी तो मॉन्ट ब्लैंक का रहता है. अच्छा, ये भी मॉन्ट ब्लैंक का नहीं है. ये मॉडल का ये क्या है? नहीं, ये मॉडल का नहीं. ये तो अच्छा, ये सस्ता तो सस्ता वाला में बात कर जो 200 रुपए का पेन है. वाटरमैन वगैरह के आते हैं. अच्छा, आई थिंक तो एक्सपेंसिव. सबसे एक्सपेंसिव स्टेशनरी आपने कौन सी ओन की? इस्तेमाल नहीं किए, हाँ. अगर ओन किए हाँ, कौन सी? तो वही है, जापान वगैरह गए तो वहाँ पर आर्ट शॉप में से बढ़िया से कागज, बढ़िया से पेन सब खरीद के लाते थे, मगर इस्तेमाल ही नहीं करते. जापान से लेके आए. जी जी. अभी भी पड़ा हुआ है. पड़े अभी. हाँ, 3,000 का उसको प्लॉट है, कहीं पे भी रख सकते हैं, वॉच स्पेस. तो स्टूडियो है हमारे पास वहाँ पर. आपने स्टूडियो भी बना दिया उसमें? वहाँ पर 3 मंजिल है. तो क्या हर मंजिल पे क्या क्या है सर? नीचे रह लेते हैं, ऊपर जो है कुछ 3D प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह रखी है, उससे ऊपर कुछ सिरेमिक्स का काम कर लेते हैं. हाँ, और उससे ऊपर बस तीनों के ऊपर पानी की टंकी है. सर हम लोग एक बार विजिट करना चाहेंगे, हम आ सकते हैं आपके यहाँ? आ जाइए. एक्चुअली नींबू तो बहुत महंगे हो गए. नींबू बहुत महंगे हो गए जाएंगे. नींबू वाला. उसमें मैं जो डाली पड़ोस के यहाँ गई हुई है ना, उसमें ज्यादा फल लगे. Will help you, ऐसे खींच के प्रॉपर. पड़ोस में वो लेडी रहती है, वो सिंगल लेडी रहती है, फल जो है सब उसको चाम कर रहे हैं. पर स्टूडियो बनाने का मन तो पहले से होगा कि जहाँ रहूंगा स्टूडियो बना. नहीं, मेरी इच्छा थी एक्चुअली डिजाइन इंस्टीट्यूट बनाने की. मैं एक्चुअली जमीन भी ढूंढ रहा था. तो अंत में मैंने ये सोचा, ब्रदर ने भी कहा कि चलो इसी में बना लो यार, जो कुछ करना चाहते हो, कितने साल हैं करने के लिए, इसी में कर लो इतना जो कुछ करना चाहते हो. आपके ब्रदर भी क्या करते हैं? आर्किटेक्ट है. ओह नाइस. बॉम्बे में है. और बड़े ब्रदर जो हैं वो मेजर जनरल रिटायर हुए, लखनऊ में हैं. बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से था सारे. सर तो आप सबसे छोटे भाई हैं. तो सर आपके पास एडवांटेज हमेशा था. से ही लकी रहे हैं सर. हाँ, आई थिंक आई हैव बीन लकी. आई हैव बीन वेरी लकी, आई हैव नो डाउट अबाउट इट. आपके बड़े भाई ने आर्किटेक्चर कहाँ से किया? आईआईटी रुड़की? आईआईटी खड़गपुर. खड़गपुर, मुझे लगा ही था आईआईटी रुड़की या खड़गपुर से किया होगा. Anyway, we were very lucky. Seven of us are there from IITs. ओके. मतलब सिस्टर्स के लड़के, बच्चे और हम लोग. So, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कोई नहीं है IITs में. वो सब विदेश गए हैं. वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ के सब विदेश चले गए. So this is what is happening. अब ये लोग सब विदेश जाएंगे. सब विदेश सेटल होने वाले. आपने भी सर विदेश में RCA से तो पढ़ाई. हाँ, मैं सेटल हो सकता था, मगर मेरा आपने बेंचमार्क ही ऐसा दे दिया ना, करे तो करेंगे क्या सर? आईआईटी के बाद और करेंगे क्या? नॉलेज मिलेगा क्या? मतलब बाहर सर जा. अभी तो सीधे गूगल का CEO ही बन सकते हैं, उससे ज्यादा तो है. ठीक है सर, रैप अप करते हैं इसको. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच सर.